الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة العيدين محتسبا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہوا کہ اللہ نے ہمیں جمعہ کا یہ دن عطا کیا اور رمضان کا مہینہ بھی عطا کیا، اور رمضان میں یہ آخری جمعہ اور آخری روزہ ہے۔ تو یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا پورا مہینہ بھی عطا کیا اور اس میں ایک جمعہ زیادہ بھی دے دیا۔ یہ اللہ کا بڑا ہمارے اوپر احسان ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ آخری جمعہ ہے اور آخری رات کو کچھ عبادت کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، جسے جمعۃ الوداع کہتے ہیں یا شب عید کہتے ہیں۔ تو آج کی رات میں کچھ فضیلت ہے یا نہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من قام لیلۃ العیدین، جو انسان عیدین یعنی رمضان اور بقرعید دونوں صبح میں عید بولے تو آج رات کو، تو آج رات جو انسان جاگتا ہے محتسباً جاگتا ہے، یہ خیال کرتے ہوئے یہ گمان کرتے ہوئے کہ اللہ مجھے اجر دے گا بول کر اس ارادے سے جاگتا ہے، تو اس جاگنے کا مطلب یہ ہے کہ اس رات کو عبادت کرنا ہے۔ تو لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، اس دن اس کا دل نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ زندہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ رات میں جاگنا، رات میں جاگ کر کیا ہے اللہ کی عبادت کرنا، ذکر و اذکار کرنا، تسبیح پڑھنا، نمازیں پڑھنا، نوافل پڑھنا، یہ مطلب۔ تو رات میں جاگنے کا مطلب یہ ہے، تو جاگ کر یہ عبادت جو انسان کرتا ہے اس کے واسطے یہ فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دل مردہ نہ ہوگا۔ کس دن مردہ نہ ہوگا؟ کل قیامت کے دن۔ قیامت کے دن حالات کیا ہے؟ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر انسان پریشانی کے حالت میں ہوگا، ہر انسان میرا کیا ہوگا بول کر ہر انسان کیا ہے ربی نفسی نفسی کہتا ہوا پھرتا ہوگا۔ تو اس دن حالات بہت ہی سنگین ہوں گے، تو اس دن اس کا دل کیا ہے، سب کے دلوں کے دل کیا ہے پریشانی کی وجہ سے مردہ بن چکے ہوں گے، لیکن اس کا دل جو انسان اس رات میں عبادت کرتا ہے اس رات میں اس عبادت کرنے کی وجہ سے قیامت کے دن اس کا دل کیا ہے مردہ نہیں ہوگا، اس طرح کی پریشانی اسے نہیں ہوگی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس رات میں کیا ہے عبادت زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے۔ تو اچھا، عبادت زیادہ کرنی چاہیے، عبادت نہ ہو سکے تو آخری درجہ کم سے کم فجر اور عشاء کی نماز تو بھی جماعت سے پڑھنی چاہیے، یعنی رات کی عشاء کی نماز بھی جماعت سے پڑھے اور فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھے۔ تو کم سے کم یہ تو بھی کر لینی چاہیے۔ پہلی بات تو جاگ کر عبادت کریں گے تو بہت زیادہ فضیلت ملے گی، اگر نہیں ہو سکتا ہے تو آخری درجہ یہ ہے کہ فجر اور عشاء تو بھی جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ تو ایک بات تو یہ ہوئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ 5 مبارک راتیں جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان ان 5 راتوں کے اندر جاگ کر عبادت کرتا ہے تو اس کے واسطے کیا ہے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو اب وہ 5 راتیں کیا ہے؟ نمبر 1 8 ذی الحجہ،
नंबर 2 अरफे का दिन, नंबर 3 10 जिलहिज्जा, 8 जिलहिज्जा, 9 और क्या है 10 जिलहिज्जा, जो बकरीद से ईद से 2 दिन पहले के और ईद का रात, ये 3 दिन जो इंसान जाग कर इबादत करता है उसके लिए क्या है जन्नत वाजिब हो जाती है। वो 3 दिन हो गए। और तीसरी क्या है रमजान की रात, रमजान की बोले तो आज रात, जुम्मा आज है तो आज की रात जो इंसान इबादत करता है, सुबह में ईद की नमाज पढ़ता है तो उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। 5वीं रात जो मुबारक रात है वो शबे बारात है। तो इन 5 रातों के अंदर जो इंसान रात में जाग कर इबादत करता है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसके लिए जन्नत क्या है वाजिब हो जाती है। तो हम तो साल भर 365 दिन में कभी भी नहीं जागते, तो ये 5 रातें तो भी कम से कम अगर रात में जागकर अल्लाह की इबादत कर लिए तो अल्लाह ताला हमारे लिए जन्नत वाजिब करते हैं। तो हमें चाहिए कि जरूर इन रातों के अंदर इबादत करनी चाहिए, इससे क्या है बहुत ज्यादा फजीलत हमें हासिल होगी। तो ये है लेकिन हमारी हालत क्या है कि इस रात को है ना शबे इस रात को जाग कर इबादत करना है, लेकिन क्या है हम शबे ईद की नाकदरी करते हैं। उसकी जिस तरह क्या है कदर करना है, जिस तरह उसको अहमियत देना है, जिस तरह उसको अदब करना है, वो हम लोग क्या नहीं करते। उसकी वजह क्या है, एक लोग जागते हैं, सबा ईद है बोले आज चांद देख डाले, तरावी नहीं है मस्त, सबा ईद है बोलकर खुशी में लोग क्या करते हैं कि खेल कूद में गुजार देते हैं। बाज लोग नौजवान हैं तो खेलों के अंदर, बातों के अंदर, रोडों पर फिरने के अंदर खेल कूद में गुजार देते हैं। बाज लोग क्या है टीवी प्रोग्राम में गुजार देते हैं, टीवी के अंदर न्यूज देखने, अब जो चाहे, अब तो आराम से सब ईद है खुशी खुशी करने के इरादे से क्या है टीवी प्रोग्राम में मोबाइल के अंदर लोग लग जाते हैं। बाज लोग इस तरह करते हैं, बाज लोग क्या है बाजारों में घूमने लग जाते हैं। बाज क्यों, बस शॉपिंग करने के लिए, या नहीं सबा ईद है बोलकर कुछ मोल लेना है तो मोल लेने के लिए, खाने के लिए, फिरने के लिए, इस तरह बाज नौजवान होते हैं इसलिए फिरते हैं कि रात में अच्छा कलरिंग रहता बोलकर रात में फिरते हैं ताकि अच्छी तरह देख लिया जा सके दिल खोलकर। तो कलरिंग देखने के वास्ते बाज नौजवान बाजारों में चले जाते हैं। तेनाली में तो कम है, जब हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु वगैरह में जाए तो रात भर यही काम होता है। तो चार मीनार वगैरह के पास चले जाओ, नौजवान इसीलिए आते हैं कि उस दिन स्पेशली कुछ निगाहें हमारे जियारत हो जाए, कुछ निगाहें हमें दिख जाए, इस इरादे से बाज लोग हो जाते हैं। तो दूसरा वजह यह है, बाज लोग क्या है होटलों के अंदर ठंडे गर्म में लग जाते हैं, यानी अब तक रमजान में रोजा रख को थक गए हैं, अब क्या क्या खाना है जो सब भी खाएगा बोलकर खाने के इरादे से बाज लोग होटलों में रख जाते हैं। बाज लोग क्यों इस रात की इबादत नहीं करते, इसलिए कि इस रात की फजीलत बाज लोगों को मालूम भी नहीं कि इस रात को भी इबादत करे तो सवाब मिलता। ये रात भी शबे बारात की तरह फजीलत वाली रात है, ये रात भी इसके अंदर बहुत ज्यादा फजीलत इंसान को हासिल होती है, बाज लोगों को मालूम ही नहीं, इस वजह से बाज लोग करते हैं। तो बाज लोगों को मालूम ना होने की वजह से इसकी नाकदरी करते हैं। बाज ताजिर लोग होते हैं, जो लोग कपड़े की दुकान वाले, ज्वेलरी दुकान वाले क्या है रात में खोल कर बैठ जाते हैं, तब ईद है बोले तो आज ज्यादा ग्राहक आएंगे और उसकी वजह से बिजनेस ज्यादा होगा, तो बाज लोग उसके अंदर लग जाते हैं। तो इस तरह इसकी नाकदरी होने की वजह ये वजूहात होते हैं, या तो खेल कूद में, या तो बाजारों के अंदर, या तो खाने में, या तो बिजनेस में, या तो खरीदारी के अंदर, या तो ना मालूम होने की वजह से इसकी नाकदरी लोग करते हैं। हमें इस तरह नहीं करनी चाहिए, इस रात की जरूर कदरदानी करनी चाहिए। नहीं तो कम से कम 2 रकात ही ईशा के बाद 2 रकात नफिल नमाज ही पढ़ ले, सलातुल तौबा, सलातुल हाजत जो भी हो, तो अपनी जो मर्जी है, या इस्तिखारा की नमाज हो, तो जो भी जरूरत है वो नमाज कम से कम 2 रकात पढ़कर जानी चाहिए। तो ईशा के फौरन ही पढ़ ले सकते हैं, रात में जाग कर फिर आंखों पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, नहीं बोले तो घर के अंदर भी पढ़ ले सकते हैं। तो इस रात को फजीलत वाली रात है, तो इस रात के अंदर जरूर इबादत करनी चाहिए, इस रात की नाकदरी ना करें। और रमजान की आखिरी रात में क्या होता है कि एक फरिश्ता ऐलान करता है, सदा लगाता है, 3 मरतबा ये सदा लगाता है, फरिश्ता आकर कहता है कि है कोई तौबा करने वाला जिसकी तौबा कबूल किया जाए, है कोई मगफिरत मांगने वाला जिसकी मगफिरत को कबूल किया जाए, उसके गुनाह को माफ कर दिया जाए। कौन है जो अल्लाह को कर्ज देगा, अल्लाह ताला उसका पूरा पूरा बदला अता फरमाएगा। इस तरह फरिश्ता क्या है ऐलान करता है रात को।
कौन है अल्लाह से मांगते सो मांगो अल्लाह ताला देगा, कौन है अल्लाह से माफी मांगता तौबा करता है तो अल्लाह से मांगो अल्लाह ताला अता फरमाएगा। इस तरह अल्लाह ताला उस रात क्या है, इस रात फरिश्ता ऐलान करता है, लेकिन हम लोग क्या है इस रात के अंदर उसकी कुछ अहमियत नहीं है तो दूसरे कामों के अंदर हम लोग लग जाते हैं, तो ये ऐसा करना गलत काम है। दूसरी बात यह है कि रमजान मुबारक में 4 काम जरूर करनी चाहिए, जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रमजान मुबारक का महीना आए तो 4 काम जरूर किया करो। क्या करना है? नंबर 1, कसरत से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना है, ला इलाहा इल्लल्लाह की कसरत लगाना है, यानी ला इलाहा जितना हो सके चलते फिरते उड़ते बैठते खाते पीते जिस तरह भी हो सके ला इलाहा इल्लल्लाह की जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा पढ़नी चाहिए। दूसरी बात यह है कि अल्लाह की बारगाह में तौबा और इस्तिग़फ़ार करना है। इस रात में क्या है अल्लाह के सामने तौबा इस्तिग़फ़ार ज्यादा से ज्यादा करना है, जितना हो सके हमें उतना ज्यादा तौबा करना है। तौबा बोले तो ऐसा मार ले तो नहीं चलेगा, बल्कि तौबे का नाम है, इस्तिग़फ़ार का नाम है, 3 चीजों का मजमुआ इस तौबा कहलाता है। नंबर 1, कोई गलती करे है तो उसके ऊपर शर्मिंदा हो। नंबर 2, आइंदा ना करने का पक्का इरादा हो। तीसरा काम क्या है, वो काम को उस वक्त छोड़ दिया हो। मसलन क्या है, अगर कोई आदमी चोरी करता है, चोरी करते करते भी अल्लाह अल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह बोलता है चुराता है, अस्तग़फ़िरुल्लाह बोलता है चुराता है, ऐसा नहीं, बल्कि वो काम को छोड़ दिया हो और आइंदा ना करने का भी पक्का इरादा हो और करे से उसके ऊपर अफसोस भी हो, तो इन तीनों चीजों के जमा को तौबा कहा जाता है। तौबा करने का मतलब यह है कि पहले वो काम को आइंदा ना करने का इरादा हो पक्का, और करे से उसके ऊपर अफसोस हो, उस काम को छोड़ भी दिया हो। तो इन 3 चीजों का मजमुए का नाम क्या है, तौबा है। तो हमें क्या है इस रात के अंदर, इस महीने के अंदर अल्लाह के नबी फरमाते हैं तौबा और इस्तिग़फ़ार ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए। तीसरा काम रमजान के महीने में हमें क्या करना है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जन्नत को अल्लाह के सामने रो रो कर गिड़गिड़ा कर अल्लाह से मांगना है कि अल्लाह हमें जन्नत अता फरमा, रो रो कर अल्लाह ताला के सामने मांगना है। चौथी चीज क्या है, जहन्नम से पनाह मांगना है कि अल्लाह मुझे जहन्नम से हिफाजत फरमा, मैं जहन्नम से दूर रख, बोलकर अल्लाह के सामने रो रो कर ये 4 काम करना है। नंबर 1, ला इलाहा इल्लल्लाह की कसरत। नंबर 2, तौबा और इस्तिग़फ़ार। नंबर 3, जन्नत मांगना। नंबर 4, जहन्नम से पनाह मांगना। ये 4 काम रमजान के अंदर करने का हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म देते हैं, तो ये 4 काम हमें करनी चाहिए। यहाँ पर एक बात यह है कि जहन्नम से हम पनाह क्यों मांगनी चाहिए, बस उसकी आग की एक मिसाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। एक मर्तबा जिब्राइल अलैहिस्सलाम आकर अल्लाह के नबी से अर्ज करने लगे कि अल्लाह के नबी जहन्नम की कुछ हालात बता दीजिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नम को 1000 साल तक जलाया गया, दहकाया गया, तो जल 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 कर क्या हुआ, वो लाल हुआ। उसके बाद फिर क्या है, और 1000 साल तक उसको जलाया गया, तो वो क्या हुआ, फिर पीला हुआ। फिर उसके बाद 1000 साल तक उसको जलाया गया, तो वो क्या है, काली हो गई। तो अल्लाह के तो इस तरह जहन्नम क्या है, 3000 साल तक जला जलाकर उसको इस तरह बनाया गया है। अब उसकी लकड़ियां क्या है, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उसकी लकड़ियां क्या है, इंसान और पत्थर है। क्योंकि इंसान और पत्थर उसके लकड़ियां होती है, उसके अंदर लकड़ियां कोल से ये नहीं होते, उसके कोल से क्या होते हैं, इंसान होता है, उसका कोलसा क्या होता है, ये पत्थर होता है। इसको रख कर अल्लाह ताला ने जहन्नम को बनाया है। तो एक तो ये, तो उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि जब जहन्नम को, जब दुनिया बनाई गई, तो दुनिया बनाई गई तो अल्लाह जिब्राइल अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने कहा कि आदम के लिए थोड़ा सा आग लेकर जाओ जहन्नम से। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम जहन्नम के दरवाजे पर आए, और जहन्नम के जो सिक्योरिटी है वो क्या है, उनका नाम मालिक है, जहन्नम के दारोगा उनका नाम मालिक है। उनसे जाकर उन्होंने पूछा, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने, थोड़ा आदम अलैहिस्सलाम के वास्ते आग दे दो। तो मालिक ने कहा कि कितना आग है, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा चलो 1 खजूर के बराबर दे दो। तो मालिक जन्नत के, जहन्नम के जो दारोगा थे, उन्होंने कहा कि अगर तुम 1 खजूर के बराबर भी आग ले जाओगे तो उसकी गर्मी की वजह से जहन्नम क्या है, दुनिया क्या है, पिघल कर राख हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा वैसा है, एक काम करो, 1 गुठली के बराबर दे दो। जहन्नम की खजूर का जो गुठली होता है, बीज होता है, उसके बराबर ही दे दो। तो उन्होंने कहा उससे भी क्या है, दुनिया जल जाएगी।
तो उन्होंने कहा अच्छा एक काम करो, जर्रा बारीक बारीक थोड़ा सा दे दो। तो वो दिया गया, लाकर क्या है उसको दुनिया के अंदर एक पहाड़ पर रख दिया गया। पहाड़ पर रखने की वजह से क्या है वो पहाड़ पिघल कर एकदम राख राख होने लग गया। तो फौरन अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को कहा कि वापस लाओ, वापस लाकर उसको जहन्नम में रख दो। तो लिहाजा उसको वापस लाकर जहन्नम के अंदर रख दिया गया। रख देने के बाद अब वो जो गर्मी बची है उससे दुनिया की आग बनाई गई। दुनिया की आग जो है जहन्नम की आग की गर्मी की वजह से, एक जगह कोलसा रखेंगे तो जरा जल जाता है, रखने के बाद वापस ले लिए तो जो जल गया है वो जर्रा हंगा है ना, वो दुनिया की आग है, जिसके अंदर दुनिया के अंदर देखे कितने सारे पहाड़ लावा के होते हैं, कितना दूर दूर से ही भाप खत्म इंसान को खत्म कर देता है, जला देता है। तो ये तो सिर्फ क्या है उसके ऊपर की धुआं है, जहन्नम के ऊपर की धुआं जो दुनिया के अंदर हम लोग आग देख रहे हैं। बाज़ रिवायतों में आता है कि उसको है ना दुनिया के अंदर लाने से पहले, वो जहन्नम का जर्रा हंगा आग लाए ना, उसको लाने से पहले 70 मरतबा या 70,000 मरतबा उसको बुझाया गया। बुझा बुझा को पानी डाल बुझा बुझा को लाए तो ये हाल उसका है। तो इतने मरतबा बुझाने के बावजूद भी वो आग की गर्मी इतनी तेज है, तो जहन्नम का हाल क्या होगा। तो इसलिए हमें चाहिए कि इस रात के अंदर जहन्नम से हमें पनाह मांगनी चाहिए। और इस रात में क्या होता है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के सबसे बड़े बदनसीबों में से एक बदनसीब को उसको भी बतलाया कि जिसको रमजान के अंदर भी मगफिरत ना हो, ये सबसे बड़ा बदनसीब है। तो रमजान अल मुबारक में भी अगर इंसान क्या है अल्लाह से माफी मांगकर अपनी मगफिरत ना करा सकता है, अपने लिए जन्नत वाजिब ना करा सकता है, जहन्नम से अपने आप को छुटकारा नहीं दिला सकता है, तो ये तो सबसे बड़ा बदनसीब होता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि इस रात के अंदर, आखिरी रात है तो कम से कम जाग कर तो अल्लाह के सामने अल्लाह को मनाने की कोशिश करनी चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह को मनाएंगे कैसा। तो जब अल्लाह का और बंदे का ताल्लुक इस तरह है कि अगर इंसान अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाकर मांगता है, रोता है, रोने के बाद जब दुआ करके हाथ मुंह पर फेर लेता है तो उसे सैटिस्फैक्शन दिल के अंदर महसूस होने लगता है, अब तो मैं पक्का मिलेगा, यानी अब मेरे गुनाह माफ हो गए बोलकर दिल को सैटिस्फैक्शन मिलता है। इससे मालूम हो जाएगा कि अल्लाह ताला मेरे गुनाहों को माफ कर दिया है, अल्लाह ताला मुझसे राजी है। तो ये इंसान को दिली कैफियत अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर रखा है। वो सैटिस्फैक्शन अगर इंसान को इस रात के अंदर मिल गई तो समझो कि उसके गुनाह माफ हो गए। तो ये रमजान के आखिरी रात में एक काम करना है। तो जैसे कि गुज़िश्ता जुमा ज़कात के कुछ मसाइल आए थे, तो कुछ मसाइल सदक़े फितर के भी बाकी रह गए थे। वो बाकी मसाइल ये है, नंबर 1, सदक़े फितर क्यों देनी चाहिए, सदक़े फितर की फजीलत क्या है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं रमजान के रोजे क्या है, आसमान जब इंसान 30 रोजे रख लेता है, रोजे रख लेने के बाद आसमान पर जाने के बजाय बीच में लटकते रहते हैं, आसमान और जमीन के बीच में क्या है लटकते हैं। जब इंसान उसका सदका दे देता है तो वह आसमान पर उसके लिए कबूल कर लिया जाता है, यानी जब तक उसके अंदर जाकर सदका ऐड नहीं होगा तब तक वो रोजे कबूल नहीं किए जाएंगे। इसलिए इंसान को सदक़े फितर, रोजे के लिए सदक़े फितर देनी चाहिए। नंबर 2, इससे पहले फितरा देने से क्या होता है, मकबूल ज़कात के बराबर सवाब मिलता है। यानी ज़कात अलग है, ज़कात की फर्जियत अलग है, सदक़े फितर की फजीलत अलग है। ज़कात तो वो फजीलत है तो उसको देना ही देना है, वो सदक़े फितर अलग मसला है, ज़कात अलग मसला है। ज़कात दे देना उसमें सदक़े फितर हो जाता, क्या बोले तो नहीं होता, सदक़े फितर अलग से देना, ज़कात क्या है अलग से देना पड़ेगा। तो सदक़े जो इंसान सदका क्या है ईद से पहले दे देता है तो उसको ज़कात के बराबर उसको भी सवाब मिलता है। तो और जो इंसान ईद के बाद अगर कोई इंसान सदका देता है तो उसको क्या है आम सदक़े के बराबर उसको सवाब मिलता है। नॉर्मली जो इंसान रमजान के बाद जो गैर रमजान में सदका देता है, जो नॉर्मल सवाब मिलता है वैसा सवाब इसको मिलेगा। तो इसलिए इंसान को क्या है ईद से पहले ही सवाब देना चाहिए। तीसरी वजह फजीलत यह है सदक़े फितर की कि रोजे को जिस तरह इंसान रखना है उस तरह तो इंसान नहीं रख सकता। किस तरह, रोजा तो रख लेते हैं, रोजा बोले तो हम लोग क्या समझते हैं खाना पीना दूर रहे तो बस बोलकर,
हालांकि रोजे के अंदर बहुत सारे काम इंसान को करना है। आंखों की हिफाजत करना, कान की हिफाजत करना, मुंह की हिफाजत करना, बदन की हिफाजत करना, गुनाहों से बचना, गीबत से बचना, बहुत सारे कामों से बचना पड़ता है। लेकिन हमारे से ये सब होने वाली बात नहीं है। रोजा रख लिए, खाते पीते नहीं, लेकिन फ्रेंड्स के साथ उल्टी सीधी बातें कर लेते हैं, मजाक कर लेते हैं, खेलते हैं, तो इस तरह की कमियां हो जाती है इंसान से। तो फितरा देने की वजह से, सदका फितर देने की वजह से वो कमियों को अल्लाह ताला क्या है, रोजे के अंदर दूर फरमाते हैं। तो इसलिए हमें सदका फितर को जरूर देनी चाहिए। एक तो क्या है, जब तक फितरा नहीं देंगे रोजा कबूल नहीं होगी। दूसरा क्या है, फितरा देंगे तो रोजे के अंदर की कमियां पूरी हो जाएगी, और इससे पहले देंगे तो सवाब भी ज्यादा मिलने वाला है। तो इतनी सारी फजीलतें उसकी है, तो इसलिए हमें सदका फितर जरूर देनी चाहिए। अब सदका फितर कितनी किस्म का दे सकते हैं? तो सदका फितर क्या है, 4 किस्म का दे सकते हैं। नंबर 1, गेहूं। गेहूं क्या है, 1.25 किलो, यानी पौकम 2 किलो गेहूं अगर देना है तो आज के हिसाब से 105 रुपए और 110 रुपए उसका रेट चल रहा है। तो इस हिसाब से गेहूं भी सदका फितर में दे सकते हैं। चाहे पैसे दो, चाहे नहीं बोले तो गेहूं खरीद को दो, गेहूं का आटा दो, जो भी चाहे दे सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, जौ। ये देना है तो 3.5 किलो देना होगा, और उसकी कीमत क्या है, 350 रुपए। आज के रेट के हिसाब से 350 रुपए जौ है। नंबर 3, खजूर है। खजूर में भी 2 किस्म है, एक आला क्वालिटी का होता है, एक बेस्ट खजूर होता है। खजूर के बहुत सारे किस्म है, उसमें से बेस्ट क्वालिटी अगर देना चाहते हैं तो 1050 रुपए होता है उसका वैल्यू, तो वो देनी चाहिए। अगर नहीं, खजूर के अंदर कुछ लो क्वालिटी का देना चाहते हैं, रद्दी किस्म का देना चाहते हैं, वो भी 3.5 किलो है, उसका रेट भी 350 रुपए है। तो ये भी अगर चाहे तो दे सकते हैं। नंबर 5 क्या है, किशमिश। ये क्या है, ये भी 3.5 किलो है, आज के रेट के हिसाब से 1925 रुपए है। तो अगर कोई इंसान इनमें से अगर अल्लाह ताला ने माल दे रखा है, एकदम हाई क्वालिटी वाला है, तो किशमिश का रेट देनी चाहिए। अगर अल्लाह ताला ने मीडियम क्वालिटी का इंसान हमें बनाया है, मिडिल क्लास में है हम लोग, तो बीच के गेहूं वगैरह, गेहूं को छोड़कर खजूर वगैरह, जौ वगैरह, इन किस्म के फितरा देनी चाहिए। नहीं एकदम गरीब आदमी है, लो मिडिल क्लास है, तो उस वक्त क्या है, गेहूं का भी वो इंसान दे सकता है। तो इस तरह सदक़े फितर के ये किस्में हैं, ये इंसान को ये देनी चाहिए। तो हमें चाहिए, अब मसला ये है कि सदक़े फितर किस पर वाजिब होता है, किस किस पर वाजिब होता है। जिस इंसान के पास 1,60,000 पर 2,180 रुपए की चीजें घर के अंदर मौजूद हो। गुज़िश्ता जुमा जब चांदी का रेट था वो 1,70,000 पर 7,000 रुपए था, अब रेट कम हो गया, तो 1,60,000 पर 8,000 रुपए की चीजें जरूरत से जायद हो। जरूरत से जायद हो का मतलब क्या है कि घर के अंदर वो चीज रखी हुई है, इस्तेमाल नहीं होती है। मसलन घर के अंदर पित्तल की चीजें शो में लग देते हैं, तो वो इस्तेमाल नहीं होती वो चीजें। किसी के पास 2 गाड़ियां हैं, किसी के पास 2 मोबाइल है, किसी के पास 2 कार हैं, किसी के पास 2 घर हैं, तो ये क्या है, जरूरत से जायद की चीजें हैं। जरूरत तो एक ही है, घर के अंदर डबल ट्रिपल है। अब एक घर के अंदर डबल बेडरूम है, बोले 2 एसियां हो जाते हैं, तो ये क्या है, एक जरूरत है, दूसरा क्या है, जायद है। तो ऐसी चीजों का वैल्यू अगर पूरा मिलाने की वजह से, चाहे छोटी से छोटी लेकर बड़ी सी बड़ी चीज तक लेकर, पूरों का वैल्यू 1,60,000 पर 8,000 रुपए तक पहुंचता है आज के चांदी के रेट के हिसाब से, तो उस इंसान पर सदक़े फितर वाजिब है, वो इंसान सदक़े फितर देनी चाहिए। और जरूरत से जायद वो क्या है, वो पैसे क्या है उसके वास्ते, चाहे वो पैसे अगर बैंक में भी रखकर है, यानी किसी इंसान के पास सुन्ना भी है, कर्ज भी है, लेकिन बैंक में लोन रखा है, तो भी सदक़े फितर वाजिब है। पैसा तो है ना, तो होने की वजह से सदक़े फितर वाजिब है। चांदी है या कोई भी चीज है, अगर चाहे कर्जों के अंदर हो, साल गुजरे नहीं गुजरे, दुकान का सामान हो, इन तमाम चीजों की वजह से इंसान पर सदक़े फितर वाजिब हो जाता है। अब सब ईद है, आज किसी के अकाउंट में अब तक क्या है, 0 था, घर नहीं था, कुछ भी नहीं था। आज रात के रात क्या है, किसी इंसान के अकाउंट में 1,60,000 पर 8,000 आ गए, लॉटरी लग गया, यानी चिट्ठी के पैसे आ गए। तो कोई भी सूरत हो सकती है, या तो बॉन्ड्स का शेयर वैल्यू बढ़ने की वजह से बेच दिया तो आज पैसे आ गए, या नहीं बोले तो चिट्ठी के पैसे आ गए। कौन तो कर्ज अब तक नहीं देना था, उन दे डाला पैसे।
ऐसा पैसे आ गए तो भी सदका फितर वाजिब हो जाता है, वो इंसान भी सदका फितर देना होगा। तो ये है सदका फितर वाजिब होने की चीजें। और फितरे की वाजिब होने की वजह क्या है, यानी फितरा वाजिब अल्लाह ताला ने क्यों किया है, ये फितरा असल क्यों देना है, उसकी एक वजह तो जो मैंने अभी बताई कि रोजे के अंदर जो कमी होती है उसको पूरा करने के लिए, एक वजह तो ये। दूसरी वजह यह है कि गरीबों के घर के अंदर भी ईद मनाई जा सके। जिस तरह मालदार आदमी अपने घर के अंदर ईद के वक्त पलू वगैरह बिरयानी वगैरह बना लेता है, तो इसी तरह गरीब आदमी भी क्या है अपने घर के अंदर ईद मनाए। इस वजह से अल्लाह ताला ने क्या है फितरा वाजिब किया है। अब दूसरा मसला यह है फितरा कब देना है। तो अगर कोई इंसान ईद से पहले ही फितरा अदा कर देता है तब भी अदा हो जाता है, लेकिन और सवाब भी उसको ज्यादा मिलता है। अगर कोई इंसान क्या है बाद में देता है, ईद के बाद अगर फितरा देता है तब भी अदा तो हो जाएगा, लेकिन सवाब जो रमजान में देने के बराबर सवाब है वो सवाब ईद के बाद देने की वजह से नहीं मिलता है। और फितरा देने के अंदर एक बात ये याद रखनी चाहिए कि इखलास का होना जरूरी है। छुपाकर देने की कोशिश करनी चाहिए, लोगों के सामने दिखाकर देने से अपने आप को बचाए। एक हदीस क्या और फितरे का फजीलत ये भी है, सदक़े की फजीलत, एक मर्तबा अल्लाह ताला ने फरिश्तों को क्या है दुनिया देखने के लिए भेजा। तो फरिश्ते आए, तिरमिज़ी की हदीस है, आकर देखा तो फरिश्तों को क्या है दुनिया के अंदर सबसे बड़ी चीज क्या है पहाड़ दिखे। तो आकर अल्लाह से अर्ज करने लगे कि अल्लाह दुनिया के अंदर सबसे बड़ी चीज तो पहाड़ दिख रही है, क्या यही बड़ी चीज है क्या? तो अल्लाह ने कहा नहीं, इससे बड़ी चीज लोहा है। लोहा क्या है पहाड़ को भी आसानी के साथ तोड़ दे सकता है। तो फरिश्तों ने कहा क्या अब लोहा ही दुनिया के अंदर बड़ी चीज है? तो अल्लाह ने कहा नहीं, आग है, उससे बड़ी चीज क्या है? आग है, आग लोहे को भी पिघला देती है। तो फरिश्तों ने कहा क्या आग ही सबसे बड़ी चीज है दुनिया के अंदर? तो अल्लाह ने कहा नहीं, पानी है। तो फरिश्तों ने कहा क्या पानी ही सबसे बड़ी चीज है दुनिया के अंदर? तो अल्लाह ने कहा नहीं, उससे भी बड़ी चीज क्या है? मेरा गुस्सा है। जब पानी आता है तो आग को भी बुझा देता है, तमाम दुनिया को भी बहा ले जा सकता है, उतना पावर पानी के अंदर है। तो फरिश्तों ने कहा पानी बड़ी चीज है। तो अल्लाह ने कहा नहीं, उससे भी बड़ी चीज मेरा गुस्सा है। तो फरिश्तों ने कहा अब सबसे बड़ी चीज अल्लाह ही का गुस्सा होगा, अब उससे बड़ी क्या चीज है? तो अल्लाह ताला ने कहा नहीं, इससे भी बड़ी चीज क्या है? सदका है, जो मेरे गुस्से को भी ठंडा कर देता है। तो इंसान जब सदका करता है तो अल्लाह ताला का गुस्सा भी ठंडा होता है, गरीबों की मदद भी हो जाती है, और अल्लाह ताला क्या है उस सदके के बदले में 70 गुना बढ़ाकर देने का अल्लाह ताला वादा करता है। और अल्लाह कहता है कि जो इंसान सदका देता है तो गोया कि वो मुझे कर्ज देता है, जब मैं उसके कर्ज वापस जरूर वापस करूंगा। वो तरीका कौन सा भी हो सकता है वो अल्लाह ही जानता है, कौन से भी तरीके से। अगर मैंने 100 रुपए सदका किया है तो उसको 70 गुना बढ़ाकर अल्लाह ताला को से भी रास्ते से हमें वापस करेगा। वो कौन सा रास्ता है, किधर से आता है, क्या आता है, वो अल्लाह ही जानता है। तो इसलिए हमें सदका करने से, फितरा देने से बहुत सारी फजीलतें भी हासिल होगी और सिला रहमी भी, आपस में ताल्लुक भी बढ़ेगा। अब मसला है कि फितरा किसे देनी चाहिए? गरीबों को देनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ अपने रिश्तेदारों को देने पर ज्यादा सवाब मिलता है। अगर कोई इंसान अपने भाई को दे देता है तब भी सवाब ज्यादा मिलता है, लेकिन क्या है पहले भाई है ना उसका मुस्तहिक होकर रहना जरूरी है। भाई, बड़ा भाई मालदार है, छोटा भाई गरीब है, तो छोटे भाई को फितरा दे सकता है। बड़ा भाई मालदार है, छोटी बहन है, उसको उसका संसार अलग है, उसको फितरा दे सकता है। तो इसी तरह सास ससुरे हैं, उनकी जिंदगी अलग है, तो उनको भी फितरा दे सकता है। अपने रिश्तेदारों के अंदर फितरा, ज़कात का माल अगर उन लोगों को, अपने रिश्तेदारों को देंगे तो उनको डबल सवाब मिलता है। एक तो फितरा देने का, ज़कात देने का सवाब, दूसरे साथ रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी का करने का भी सवाब उसे अलग से मिलता है। इसलिए अपने रिश्तेदारों को पहले तलाश करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन हमारी फितरत क्या है, हम लोग क्या है उन्होंने इससे पहले क्या किए, गलती कर ले को रहते, अब वो गलती हमारे दिमाग में रख लेकर हम लोग उनको देना ही छोड़ देते हैं। उन वो टाइम को वो करया, वो टाइम को ये बात बोली, उन टाइम को ऐसा कर को है बोलकर उन लोगों का हमारे सामने वो गरीब दिखते भी है, लेकिन फिर भी क्या है हमारे दिमाग में एक बैठा हुआ है पहले की पुरानी दुश्मनी, जिसकी वजह से हम लोग उन लोगों को सदका, फितरा, ज़कात वगैरह नहीं दे सकते हैं। तो हमें चाहिए कि ऐसा करने से अपने आप को बचाने की कोशिश करनी चाहिए।
اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔